ভারতবর্ষের প্রায় 1.5 থেকে 2 কোটি লোক ছবিটা দেখেছেন। বিদেশের নম্বরটা আমার এখনো জানা নেই, এবং আপনাদের আমি এই কথাটা বাংলার ছেলে হয়ে বলতে পারি যে এই ছবিটা নিয়ে সারা ভারতবর্ষে কেন সারা পৃথিবীতে আলোড়ন করেছে, কারণ আমরা এমন কিছু বিষয় নিয়ে ছবিটাতে কথা বলেছি। এই ছবিটার বিষয় এমন যেটা বছরের পর বছর ধরে কেউ ডিসকাস করার জন্য সাহস করেনি বা ডিসকাস করতে চায়নি, সেটার যতই যেই কারণই হোক। তো সেই জন্য আমি আজকে আপনাদের মাঝখানে অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছিলাম আসবার জন্য, এখানে আপনাদের কাছে এসে আপনাদের প্রশ্নের জবাব সোজাসুজি দিতে পারবার জন্য আমি ভীষণ খুশি। Thank you all of you for coming here. Thank you for supporting us, and the ban from our film has been lifted after 2 weeks of its release. I get messages on social media, on Instagram and Twitter every day saying, please release the film in Bengal. Why aren't you releasing it here? It was not in my hands, and like Dada said, we made a movie with our hearts. I just hope you all watch it, and then after that you can decide whether you have positive feedback or negative. But please watch it before deciding and having your opinion on it. Thank you. আশা নিয়েছিলাম যে আমরা এখান থেকে প্রেস কনফারেন্স করে কয়েকটা হলে যাব দেখবার জন্য, রিঅ্যাকশনে শোনার জন্য, কিন্তু এখানে এসে শুনতে পেলাম যে এখন অবধি কোনো হলে, এবার বুক মাই শো বা কোথাও এই ছবিটাতে বুকিং হচ্ছে না বা কোনো হলে দেখানো হচ্ছে না। আমি জানি না এর কারণ কি, কারোর সঙ্গে আমার কথা হয়নি। আমার মনে হয় কালকে সুপ্রিম কোর্টে যে রায় দিয়েছেন সে রায়টা বেশ ক্লিয়ার। সেই ক্লিয়ারে এমন কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলো আমাদের জন্য একটু সতর্কতামূলক ব্যাপার, কিন্তু ভালো কথাটা হচ্ছে ফিল্মের প্রথম শট থেকে লাস্ট শট সেখানে অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট কোনো টাচ করেননি, একটা শটও কাটতে বলেননি, একটা ডায়লগও কাটতে বলেননি, একটা কোনো ক্যারেক্টারকে নিয়ে কোনো কমেন্ট করেননি। শুধু কিছু লিগাল ইস্যু আমাদের জন্য বলেছেন, শুরুতে কিছু লাগাতে হবে বা পেছনে, সেটা খুব বড় কথা নয়, এটা একটা লিগালিটিসের মধ্যে দিয়ে যায়। তো আমরা ভেবেছিলাম যে কালকেই এই পুরো ব্যাপারটার প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে আরো কিছু বাকি আছে, হয়তো সেটা আমরা আপনাদের সঙ্গে ডিসকাস করতে করতে হয়তো কিছুটা জানতে পারবো। আমি রিয়েলি জানি না, ভোরবেলায় বেরিয়েছি বম্বে থেকে। As an actor, I think कि हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम का किरदार निभा सकती है, एक बंगाली लड़की एक सिख लड़की का किरदार निभा सकती है, एक इंडियन लड़की एक फॉरेनर लड़की का किरदार निभा सकती है। अलाउड है, इट्स कॉल्ड क्रिएटिव लिबर्टी इन सिनेमा, एंड जो मेरा कैरेक्टर चाहेगा मैं वो करूँगी। मैंने एक फिल्म किया जहाँ पे मैं एक ट्रांसजेंडर रोल मैंने निभाया था, तो आई थिंक जो भी रोल मुझे ऑफर किया जाएगा उसके हिसाब से आई डोंट चूज द रोल डिमार्केटिंग थिंग्स फ्रॉम कि ये रिलीजन में ये है या ये लड़की का ये है। अगर मुझे लगेगा कि मैं वो किरदार के लिए मैं जस्टिस निभा सकती हूँ तो मैं वो जरूर चुनती हूँ। গত 15 দিন ফিল্মটা যতদিন ধরে রিলিজ হয়েছে, সেই রিলিজ হওয়ার পরে আমরা প্রচুর আমাদের অনলাইন ট্রোল করা হচ্ছিল, গালিগালাজ দেওয়া হচ্ছিল। আমি আপনাদের একটি মেয়ের গল্প বলি। 21 বছরের একটি কেরালার মেয়ে, মুসলিম মেয়ে, যেদিন থেকে আমাদের ট্রেলার রিলিজ হয়েছে সেদিন থেকে আমাকে অ্যাবিউসিভ মেসেজ পাঠাচ্ছিল। আপনারা আমার সোশ্যাল মিডিয়া পেজে গিয়ে দেখতে পারেন, তার কমেন্টটা আছে, একদম পাবলিক কমেন্ট, যে ভাইয়া আই এম সরি, আই ওয়াজ অ্যাবিউজিং ইউ অল দিস ডেজ, বাট ইয়েস্টারডে নাইট আই স দ্য ফিল্ম, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ ডান আ গ্রেট সার্ভিস টু মাই রিলিজিয়ন অ্যান্ড দ্য কান্ট্রি, এভরি প্যাট্রিয়টিক ইন্ডিয়ান শুড সি দ্য ফিল্ম। তো এই শব্দগুলো এক একটা ওয়ার্ডের ভ্যালু আমরা বুঝতে পারছি যে কি মানে হয়। আমাদের ফিল্ম নিয়ে যখন ফিল্মটা রিলিজ হয়নি অনেক সমালোচনা হয়েছে, অনেক রকমের ট্রোলিং হয়েছে, অনেক রকমের কমেন্ট করা হয়েছে, কারণ আমরা জানি যে এটা একটা ভীষণ সংবেদনশীল বিষয়। এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলাটাও একটা হাসাস ব্যাপার, কিন্তু আমরা সেই সাহসটা করেছি বলবার জন্য। গত 7-8 বছর ধরে আমি এই বিষয়টা নিয়ে রিসার্চ করেছি। যেই আমাদের ছবিটা সেন্সর বোর্ডে 2 মাস ধরে পড়েছিল, 2 মাস, এক একটা ডায়লগ, এক একটা সিন সেন্সর বোর্ড চেক করেছে। আমরা সেন্সর বোর্ডকে প্রায় 3 ঘন্টার টেস্টিমোনিয়াল দিয়েছি।
ইয়েদের যারা ফোর্সড কনভার্সন সার্ভাইভারদের আমরা প্রায় 200 পাতার ডকুমেন্ট দিয়েছি। সারা পৃথিবী থেকে ডকুমেন্ট যেগুলো আমরা কালেক্ট করেছি, যার বেসিসে আমরা স্ক্রিপ্টটা বানিয়েছি, এবং তারপরে সেন্সর বোর্ড আমাদের সার্টিফিকেশন করেছে। সেন্সর বোর্ড একটা কনস্টিটিউশনাল বডি, এবং সেন্সর অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনস্টিটিউশন সেন্সর বোর্ড যদি কোনো ছবিকে পাস করে দেয়, সেই ছবিকে ব্যান করা যায় না। সুপ্রিম কোর্টের কাছে আপনি কিছু ইস্যু তুলতে পারেন। তো 3 তারিখ 4 তারিখ মে মাসের সুপ্রিম কোর্টের কাছে অনেকগুলো পিটিশন গেছিল, তারপরে কেরল হাইকোর্টে গেছে, তারপরে তামিলনাড়ু হাইকোর্টে গেছে, এবং সব জায়গা থেকে আমাদের ছবিটার ওপরে কোনো রকম কোনো আঁচ আসতে দেয়নি। আমাদের ছবিটা সারা ভারতবর্ষে, শুধু বিদেশেও ভেবেছিলাম একই দিনে রিলিজ হবে, করতে পারিনি, সারা ভারতবর্ষে রিলিজ হবে। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई that I could be the face of so many stories, कि मैं इतना अवेयरनेस मेरी ओर से मैं लेके आ सकती हूँ ऑडियंस के लिए। एक एक्टर एक मीडियम है, तो जो डायरेक्टर चाहते हैं और जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है, मैं आपके सामने अपने इमोशंस के थ्रू लेके आ सकती हूँ, एंड होपफुली मैं टच कर सकती हूँ कुछ दिलों को। एंड क्योंकि पूरा नेशन आज हमारे साथ खड़ा है, आई नो कि हम लोग ने बहुत सारे लोगों के दिल में जगह बनाई है, तो इट मेक्स मी फील वेरी वेरी हैप्पी एज अ गर्ल ऑल्सो, क्योंकि मैंने इन लड़कियों की रियल लाइफ कहानी भी सुनी। और अगर आप यूट्यूब पे भी जाओ अभी, सब पूरा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ने किया, जो रेप विक्टिम्स थे, इन्होंने सब अपनी स्टोरीज बताई है। तो ये जो हम लोग नंबर्स ऐसे जैसे ऑक्शन करते हैं ना, एक पॉट को स्टेज पे रख के लोग ऑक्शन करते हैं और लोग बोलते हैं इतना 32,000 1 32,000 2, तो वो अगर आप थोड़ा सा साइड में रख के इन लड़कियों की एक्चुअल स्टोरीज सुने, तो आई थिंक उनके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल होगा फॉर द थिंग्स दे हैव गॉन थ्रू, उतना तो हम लोग कर सकते हैं। हमें जब मोमेंट हमें पता चला कि ये बैन लिफ्ट हो गया है और आज से कोलकाता में फिल्म दिखाया जाएगा, पूरे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म दिखाया जाएगा, हम इतने खुश थे ना। इस फिल्म में मतलब मैं एक बंगाली हूँ, मेरी म्यूजिक डायरेक्टर एक बंगाली है, प्रोडक्शन डिजाइनर एक बंगाली है। सो वी वर सो प्राउड, सो हैप्पी दैट हमने इमीडिएटली डिसाइड की कि हम कोलकाता जाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जब तक हम कोलकाता पहुंचे थे, ये पता चला ना बुक माई शो में कोई टिकट बुक हो रहा है, ना ही कोई हॉल में फिल्म की कोई प्लानिंग है रिलीज करने के लिए। हमारे लिए ऐसा एक दुख की और सरप्राइज की एक्सप्रेशंस है हमारे बीच में। आई थिंक आधा कैन गिव हर रिएक्शन। लेकिन हमने ये सोच के नहीं आए थे, कि आज भी ये फिल्म नहीं होगा, ये इसकी क्या रिएक्शन होगा, ये हमारे प्रोड्यूसर, कोर्ट, लॉयर, ये हमारे जरूर ये लोग कोई ना कोई डिस्कशन करेंगे, कोई ना कोई काम बात करेंगे। एट दिस मोमेंट जो खुशी लेके हम लोग आए थे वो काफी हद तक डाउन हो गया। तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि कलकत्ता बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना नहीं जा रहा। ये बहुत गंभीर बात, और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो हमें फिर कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, और हम जाएंगे, क्योंकि ये लोगों का हक है जो सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को दिया है कि वो ये पिक्चर अगर देखना चाहे तो उन्हें देखने मिलनी चाहिए। उन्होंने पुलिस को कहा है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए, उसके बावजूद अगर सिक्योरिटी नहीं दी जा रही और अगर ये फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने दिया जा रहा, तो ये बहुत गंभीर सिचुएशन है इस देश में। और मुझे लगता है कि ये जो डेमोक्रेसी की बातें करते हैं और उसके बाद इस तरीके का बिहेव करना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर विषय है। अगेन आई से अगर आप फिल्म देखते, अगर फिल्म को लेके कोई सवाल उठता तो फिल्म को बैन कर दिया जाता, सेंसर बोर्ड फिल्म को पास नहीं करते, क्योंकि इस फिल्म में जो कहानी बोला गया है, फिल्म की एंड में उसी की टेस्टिमोनियल डाला गया। जिस लड़की अभी जो लड़की थी वो खुदकुशी करके मर जाती है, वो बच्ची की माँ बाप आके बोलती है कि ये मेरी बेटी को तो बचा नहीं पाए एटलीस्ट, और बाकी लड़कियों को बचाने के लिए इन लोगों का फोटो डाल देना। जो लड़की के साथ
गैंग रेप होता है बार बार, वो लड़की कैमरा के सामने आके बोलते हैं ये मेरी जिंदगी की कहानी है। आपको क्या लगता है मुझे किसी की सर्टिफिकेट चाहिए ये बोलने के लिए कि ये कहानी गलत है? I stand by my, that is what I am saying कि मेरी कहानी, मेरी फिल्म की फर्स्ट शॉट टू लास्ट शॉट एक शॉट भी काटे नहीं गए, एक डायलॉग काटा नहीं गया, उसके आगे क्या डिस्क्लेमर लगेगा, पीछे क्या लगेगा, क्या बोलना पड़ेगा, वो मेरी प्रोड्यूसर और लीगल टीम की काम है। उसके साथ सिनेमा का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन बेशक जो सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे हम वही करेंगे, लेकिन आई स्टैंड बाय माय फिल्म। हमारे पास शायद हमारी डिस्ट्रीब्यूटर वेस्ट बंगाल की डिस्ट्रीब्यूटर इसमें ही होंगे, उनके साथ हम कॉन्स्टेंटली टच में हैं। बहुत सारे ये एग्जिबिटर्स हॉल की ओनर विपुल सर को हमारी बॉम्बे ऑफिस की जो डिस्ट्रीब्यूशन की लोग हैं उनको फोन करके ये बोल रहे हैं कि हम फिल्म दिखाना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई फोन आते हैं इस फिल्म नहीं चलाने के लिए। वो कौन लोग हैं मुझे मालूम नहीं, अगर मालूम होगा तो आप लोगों के साथ मैं अगर टेररिस्टों का नाम ले सकता हूं तो उनका नाम भी बता दूंगा। किसी ने फोन करके धमकी जब देते हैं तो नाम तो नहीं बताते हैं ना। अच्छा, दूसरी सवाल ओटीटी, ये फिल्म बड़े पर्दे के लिए बनाया गया है। ये फिल्म हम चाहते हैं कि दुनिया के सब लोग बड़े पर्दे में देखें, बिकॉज दिस फिल्म हैज सम स्टेटमेंट, विजुअल स्टेटमेंट आल्सो। आई मीन इट हैज बीन शॉट इन केरला, इट हैज बीन शॉट इन हिंदूकुश जोन in northern phase, you know, western Himalaya, Hindu Kush zone में भी shoot हुई है. So it has a visual storytelling, visual statement also. So I want to, that is what विपुल जी और मैं decision लिया था, ये फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बड़े पर्दे में दिखाएंगे, and then we will come to OTT. And moreover, this film got an A certification. ये सर्टिफिकेशन अगर ओटीटी में आ जाते हैं ना, ज्यादातर लोग देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए वी आर सोशली कॉन्शियस फिल्म मेकर्स, सो वी विल डेफिनेटली गो टू ओटीटी, बट फॉर आफ्टर सम टाइम लोग जब ये फिल्म देखें तो वो लोग सोचे कि ये टेररिस्ट कितने बुरे हैं और क्या क्या कर रहे हैं लड़कियों को, गैंग रेप कर रहे हैं, 15 आदमी एक साथ एक टाइम पे एक लड़की को रेप कर रहे हैं, प्रेग्नेंट औरत को 9 महीने प्रेग्नेंट औरत को रेप कर रहे हैं, लड़कियों को ड्रग कर रहे हैं, कैप्टेगॉन और एम्फेटामिन जैसे ड्रग्स देख के उसी सीरिया लेके जा रहे हैं जबरदस्ती बिना उसकी मर्जी के। हाँ, ये फिल्म 32,000 कैरेक्टर को हम फिल्म में नहीं ला सकते। फिल्म 32,000 लोग एक्टर से नहीं बनता है। 32,000 की कहानी या 50,000 की कहानी से कुछ सैंपल कहानी उठाए जाते हैं। सर ये सच्चाई भी तो नहीं है, ये सच्चाई भी तो नहीं है 32,000 की। नहीं, ये हो सकता है 31,942 है, हो सकता है 47,740 है। अगर इस देश की एक बेटी के साथ भी गलती होती है ना, सर झुक जाना चाहिए। तो इसलिए नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने जो लड़की बोली ना, वो है रियल विक्टिम, उसने बोल के गई 32,000 से बहुत ज्यादा है। हमने फिल्म में 32,000 नहीं बोली, हमारे फिल्म में कहीं पे 32,000 संख्या है नहीं। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ अपने टीम के साथ, और आप सबका सपोर्ट भी है मुझे। आप सोचो कि वो लड़कियों पे क्या बीती होगी अभी, बिकॉज उनको क्या लगता होगा, वो रियली ये when they really have gone through this, और फिर वो लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, और फिर लोग बोल रहे हैं नहीं पर वो 32,000 है या 31,999। तो आप सोचो आपके साथ अगर रेप हुआ है और आप बोल रहे हो किसी को भी हुआ है, जैसे कि ठीक है आपके साथ हुआ पर शायद 32,000 नहीं हुआ, 31,000। तो आई थिंक कि उन लड़कियों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। मेरा आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है। आई होप जितना सपोर्ट आप मुझे कर रहे हो उन लड़कियों को भी करो और फिल्म को करो इसलिए। সেই মেয়েটি এই মুহূর্তে আফগানিস্তানের জেলে বসে আছে, কোনো কোশ্চেন নেই তার সততা নিয়ে, এটা সত্যি ঘটনা। গীতাঞ্জলি মেনন মেয়েটি যে সুইসাইড করেছে, কি অবস্থায় সুইসাইড করেছে সেই নিয়ে কোনো কোশ্চেন নেই। নিমা ম্যাথিউ যে মেয়েটি বারবার গ্যাংরেপ হয়েছে সেই তার সত্যিতানি নেই, তাহলে কোশ্চেনটা কোথায়? ওই 32,000 না ভিক্ষা করা হচ্ছে না। আমি সেটাই আমি আগেই বললাম
যে ছবিটার প্রথম ফ্রেম থেকে লাস্ট ফ্রেম অবধি না ভারতীয় সেন্সর বোর্ড, না অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট, না কেরালা হাইকোর্ট, না তামিলনাড়ু হাইকোর্ট, প্রায় গোটা 20 পিটিশন আমার ছবিটাকে কখনো ডিসক্রেডিট করেনি। তার আগে কি লাগানো হবে, পেছনে কি লাগানো হবে, ওটা আমার প্রোডিউসারের রেসপন্সিবিলিটি। Film has not been touched. Film has been approved. West Bengal has given birth of so many arguments in this world in the ideological level. क्या प्रॉब्लम हो गया इस फिल्म के साथ? ये तो मुझे आज भी समझ में नहीं आता है कि कौन किसकी टेररिज्म के बात करने से किसकी प्रॉब्लम होगा। हमें लोगों ने बोला है कि बाय दिस फिल्म वी हैव डन अ सर्विस टू इस्लाम। कैसे टेररिज्म इस्लाम रिलीजियन को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये फिल्म में उसी की कहानी बताया गया। जो लोगों ने फिल्म देख के आए, मतलब ऐसे ऐसे कहानी आप लोगों को सुनने को मिलेगा। एक लड़का मोबाइल फोन में हॉल में फोटो की फिल्म को कॉपी कर रहा था, एक मुस्लिम कपल जाके बंद किए उसको। ऐसे भी कहानी हमारे सामने आए। सो मैटर ऑफ फैक्ट इज, आप लोगों को पास मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है, मेरी और विपुल शाह और राधा शर्मा की तरफ से, आप लोग आवाज उठाइए, कल की न्यूज़पेपर में लिखिए कि ये फिल्म देखना है। इस देश की पश्चिम बंगाल की सारे लोग चाहते हैं ये फिल्म देखने। 5 दिन 6 दिन ধরে যত টেলিভিশন চ্যানেলে ইন্টারভিউ দিয়েছি, সব জায়গাতে বলেছি যে আমার অনেক রেসপেক্ট আছে অনারেবল চিফ মিনিস্টারের জন্য। আমি অনারেবল চিফ মিনিস্টারের কাছে প্রার্থনা করতে চাই যে আপনি আমাদের ফিল্মটা দেখুন। উনি যদি চান আমি ওনার সঙ্গে বসে ফিল্মটা দেখব। ব্যাপারটা হলো যে এটা আমার ছবি বা আমার ইগোর ব্যাপার নয়। এটা আমরা কতগুলো মহিলার, হাজার হাজার মহিলার কথা বলেছি ছবিটাতে, এবং তাদের ইস্যুটা খুব বড়। এবং সেই মেয়েগুলো যে কেরল থেকে মেয়েরা এসেছিল বা ম্যাঙ্গালোরে যে মেয়েগুলো, এই 17,000-এর নাম্বার একটা পেয়েছি, ম্যাঙ্গালোর থেকে ফোর্স কনভার্সন হয়েছে, সেই মেয়েগুলো মমতা দিদির সাপোর্ট চান। এই মেয়েগুলো এটা তো কেউ অস্বীকার করছেন না, চলুন মেনে নিলাম 32,000 একটা ফিকটিশিয়াস নাম্বার, কিন্তু 17,000, 12,000, 7,000, ওমানচন্দ্রী তো 7,000-এর নাম্বারও বলেছিলেন না। এই নাম্বারগুলো তো কেউ অস্বীকার করছেন না। আমাকে ডিসক্রেডিট করে দিন। এই যে আমাদের দেশে ম্যানিপুলেটিভ কনভার্সন হচ্ছে, এই ব্যাপারটা কেউ অস্বীকার করছেন না, সেটা করছেন এটা নাম্বার নিয়ে। যে এই সাবজেক্টটাকে যদি আপনারা মানেন, আমার ধারণা দিদির ওনার পাশে দাঁড়ানো উচিত। To know the Bollywood latest updates, subscribe now City Bollywood YouTube channel.